तो hope so कि चलिए स्टार्ट करते हैं, नॉट वेटिंग फॉर मच मोर टाइम। तो हाय ऑल स्टूडेंट्स, we will discuss today about thermodynamics qualitative properties, and we will know about thermodynamics qualitative properties, bioenergetics, glycolysis, oxidative phosphorylation, coupled reaction, group transfer, biological energy transfer, transducer. Okay, so we are going to study today this one, thermodynamics. Okay, so we'll learn today about the thermodynamics. What is thermodynamics? Why we should study the thermodynamics. So by studying the thermodynamics, we are able to know, we will able to understand how reaction goes backward and forward. About the entropy, we can understand all the life processes. Life is open or closed system. We can understand. So basically, what is thermodynamics? So starting with the bioenergetics, because it's related with the biological phenomenon, and bioenergy study is related to the energy flow, and how the transformation is going on in the living cells and organism through respiration and metabolism. So bioenergetics is the science of energy of biological system. Okay. So how energy is going to involve, how energy is going to transform, how energy is going to be utilized, all these aspects are the part of bioenergy. Okay. So let us start with the already known phenomenon. For example, whatever the biomolecules are there, they are having some bonds. For example, they have the covalent bonds, right? So, and there are some non-covalent bonds, and non-covalent bonds, if you'll see, these are ionic bonds that have the energy 10 kilocalorie per mole. Two hydrogen bonds are there. Second one is hydrogen bonds. They are having the 4 to 5 kilocalorie per mole. So you can see the difference. कोवलेंट बॉन्ड में आप देख सकते हो 50 से 110 किलो कैलोरी पर मोल है, काफ़ी हाई स्ट्रेंथ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। नॉन कोवलेंट जो कि आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल, ये सारे होते हैं, तो इसमें एनर्जी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द कोवलेंट बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड में देखिए तो 10 किलो कैलोरी पर मोल, हाइड्रोजन बॉन्ड्स में 5 किलो कैलोरी पर मोल, and if you'll see in the van der Waal forces, so these are around 4 calorie per mole. Okay, so all these things are there, and one mole you should know how much molecule, एक मोल में कितने molecules होते हैं, तो well known phenomenon है, that is 6 into 10 power 23, right? तो ये आप समझ ही चुके होंगे, and 1 kilocalorie amount of energy that will heat 1000 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade. This is a kind of talking of energy, about the energy, and you can see the energy level, how the energy is going to uh, flow. So energy is going to flow, uh, and energy is capacity to work. Okay, so and if you'll see, energy is the ability to do the work. So whenever the work is done, energy is going to be utilized, right? Yes. So energy is ability to do the work. Law of thermodynamics basically डील विद द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जी को समझना चाहते हैं तो आपको सारे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑटोट्रॉफी। अगर बात करोगे, ऑटोट्रॉफी होती है जहाँ सनलाइट यूज़ करके प्लांट्स आर मेकिंग द एनर्जी, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ लो एंट्रोपी कंडीशन से स्टार्ट होती है एनर्जी, एंड गोइंग टू द हाई एंट्रोपी कंडीशन। एनर्जी फ्लो इन केमिकल रिएक्शन, दो तरह की एनर्जी फ्लो हो सकती है, एक्सरगोनिक रिएक्शन लेजेज एनर्जी, एंडरगोनिक रिएक्शन रिक्वायर एन इनपुट एनर्जी, ठीक है ना।
तो इंटरगोनिक रिएक्शन इनपुट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कपल्ड रिएक्शन लिंक एक्सरगोनिक विद इंटरगोनिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। और जब भी कपल्ड रिएक्शन होते हैं तो वो लिंक करते हैं एक्सरगोनिक और इंटरगोनिक रिएक्शन, तो तभी वो आगे रिएक्शन चल पाते हैं। तो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड थर्मोडायनेमिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग एनर्जी फ्लो इन लाइफ इज़ द मेन पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक तो एनर्जी समझना पड़ेगा, काम करने की जो एबिलिटी है वो कैसे हो रही है, कैसे इंट्रैप हो रही है एनर्जी लिविंग थिंग्स में। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया, वट एवर द सनलाइट, सनलाइट की जो एनर्जी वो ट्रैप हो रही है क्लोरोफिल में, एंड देन दे आर ट्रांसमिटिंग टू द अकॉर्डिंग टू द फूड चेन। तो वो फ्लो हो रही है, और फ्लो होने में केमिकल रिएक्शन जो होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन पाथवे फॉलो होता है। एंड इन मेटाबॉलिक पाथवे यू कैन सी there are both type of reaction, exergonic where energy is released, एंडरगोनिक रिएक्शन जहाँ पे कि एक इनपुट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। और जब भी कपल्ड रिएक्शन होगा, एक्सरगोनिक और एंडरगोनिक मिक्स होंगे, और फिर फाइनल एनर्जी डिसाइड करेगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे लाइफ की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं मोस्टली दे आर रिवर्सिबल, है ना। एंड थर्ड पॉइंट होती है इस कैटेगरी में कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग सेल, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो क्योंकि बॉडी टेम्परेचर की बात होती है, बॉडी टेम्परेचर पे सारे कंडीशन कंट्रोल करने होते हैं, सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस मेटाबॉलिक पाथवे होनी होती है। तो दैट is possible because of catalytic activity, and you know the catalytic activity reduces the activation energy. तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी जब भी होती है बायोमॉलिक्यूल्स की, दैट मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कभी भी लाइफ में फिजिबल नहीं होती है, वो हमेशा स्लो चलेगी। एंड टू सस्टेन द लाइफ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड सम सिस्टम। तो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, जिसको हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट यू विल सी व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, हाउ वी कैन डिफाइन द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, इट एक्सप्लेन हाउ thermal energy is converted to or from other form of energy and how matter is affected by this process। कैसे थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक सोर्स होगा और दूसरा सिंक होगा, ठीक है ना। और एक डब्ल्यू प्रोसेस होगी जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड, है ना। तो ये वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज हॉट सोर्स है एंड दिस इज कोल्ड सिंक है एंड दिस इज द वर्क डन। तो ये एनर्जी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में जब भी कन्वर्ट होगी, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is specifically related with conversion of one form of energy to another, and thermal energy is basically that energy coming from the heat. So this heat is generated by the movement of tiny particle within an object. The faster this particle move, the more heat is generated, more heat is generated। heat ज़्यादा कब जनरेट होगा? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा टीनी पार्टिकल है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्लोली मूव करता है तो उतनी हीट जनरेट नहीं होगी। जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। एंड अगर आपको समझना है थर्मोडायनेमिक्स को, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कि व्हाट इज़ द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री क्या होती है बेटा, आपको समझना पड़ेगा, राइट। एंड देन यू हैव टू नो अबाउट द सराउंडिंग एंड अबाउट द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम बन जाता है। जैसे एक आप देख रहे हैं सेल है, सेल तो एक इसको कहेंगे आइसोलेटेड बाउंड्री है। आइसोलेटेड बाउंड्री उसको बोलते हैं जिसका एक क्लोज सरफेस होगा। तो एक सेल का मेम्ब्रेन होता है, दैट्स वाई दैट सेल विल बी कॉल्ड एज आइसोलेटेड बाउंड्री। एक सराउंडिंग से सेपरेट करता है, एक एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है, तो अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर रहा है सराउंडिंग से, ठीक है ना। तो एक तरीके से आइसोलेटेड बाउंड्री होगी। एंड ये इन्वायरमेंट से क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा हीट एंड मास को, ठीक है ना। तो वो एक चार्ट हम आपको दिखाएंगे मीन वाइल कि हाउ दिस आइसोलेटेड बाउंड्री और सेल इज एक्सचेंजिंग द हीट एंड मास और अदर थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट सराउंडिंग एवरीथिंग दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। सिस्टम से जो इंटरेक्ट करेगा उसको सराउंडिंग बोलेंगे। सिस्टम क्या होगा? सिस्टम एक रीजन होगा एक सेपरेटेड बाउंड्री के अंदर, है ना, जो कि एक्सचेंज करेगा कोई भी चीज़ सराउंडिंग से। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग दीज आर द पार्ट ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स एंड आइसोलेटेड बाउंड्री इज एसेंशियल। तो हम सिस्टम को समझ सकते हैं कि
देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम इन द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में तीन तरह के सिस्टम होंगे। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली अगर बात करो तो एक बाउंड्री से ही स्टार्ट होता है ना। एक इमेजिनरी बाउंड्री भी मान सकते हैं, रियल बाउंड्री भी मान सकते हैं, फिक्स बाउंड्री भी मान सकते हैं। तो आइसोलेटेड बाउंड्री वो बाउंड्री होती है दैट कैनॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मास विद इट्स सराउंडिंग। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा बिल्कुल आइसोलेट हो गया है यूनिवर्स में, तो पूरा यूनिवर्स अगर देखो तो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि मास और सराउंडिंग से कुछ भी नहीं ले पाएगा। उस आइसोलेटेड सिस्टम में हमारी सेल है ना। तो जैसे अगर हम कहते हैं क्लोज सिस्टम है, तो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द क्लोज सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, द ट्रांसफर ऑफ मास डज नॉट प्लेस। एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, हाँ एक हम देख सकते हैं, एक सेकेंड, राइट। तो एक सिस्टम बन गया जहाँ पे कि हम देख सकते हैं कि व्हाट इज क्लोज सिस्टम, बिकॉज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज सिस्टम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, द ट्रांसफर ऑफ मास डज नॉट टेक प्लेस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है बट मास का ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा। तो ये हम समझेंगे विद वेरियस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि हाउ दिस इज टेक प्लेस, हाउ दिस कैन बी टेक प्लेस, ठीक है ना। तो मीनवाइल हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए सिस्टम को, नोटबुक लेके रखिए। मुझे पता है सारे सी शहर के एस्पायरेंट्स हैं, क्विक सक्सेस चाहते हैं, बट क्विक सक्सेस का कोई भी रास्ता नहीं होता है। आपको पूरा जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अगर पूरे आंसर देने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ का एक स्टाइल होता है, एमसीक्यूज़ बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर मांगता है। अगर उसमें आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो यू आर गोइंग टू गिव द रॉन्ग आंसर। भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था क्विज़ेस, इसके बाद भी शेयर करूँगा कि जैसे पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ क्लोज सिस्टम। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो नाउ यू कैन आंसर। तो दैट इज़ सिंपल कि अगर आप आंसर देते हैं आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है और आप एक ड्रीम लाइफ जी सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, एंड 31,000 इज़ नॉट इनफ। मुझे बदले में कुछ नहीं मिलना है, बस मैं आपसे यही स्नेह प्यार चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कम समझाएं, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पर डाल सकते हैं। So I'm ready to help you all. And myself, Dr. S.M. Bhatt, Shilendra M. Bhatt. I am PhD from BHU, and I am taking the CSI classes from last 5 years, and there are more than 20 selections because of these live classes. तो अभी इस साल बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बच्चों की अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा कि लाइव क्लासेस दी जाए। तो लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी सिस्टम बढ़ेगी। हम भी थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट हैं, अगर आपने अपना सिस्टम क्लोज कर दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं रेफ्रिजरेटर का। एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पिस्टन से हम किसी गैस को डाल रहे हैं सिलेंडर में, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर क्लोज सिस्टम, जहाँ पे कि क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन मास का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज ओपन सिस्टम, एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम वो कहेंगे जहाँ बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन से कि चलो लाइफ इज ए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, मुझे बताना कमेंट। लाइफ इज ए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। लाइफ ओपन सिस्टम होता है या क्लोज सिस्टम, एक एग्जांपल आपको बता दें, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल सी सम CSIR PYQ, तो उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। हमारा डेली क्लासेस होता है 8 to 9, और हम लाइव स्ट्रीमिंग पूरा 1 आवर की होती है, लंबी वीडियो होती है, क्योंकि सिस्टम को समझाना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हम चलते हैं ताकि जो हमारे वीक बच्चे हैं वो भी इसको समझ पाएँ। तो मेरे ख्याल से आप हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है बच्चों। हेलो, हेलो मेरे बच्चों, ये बंद हो गया। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ तुम लोग, ये सिस्टम मेरा थोड़ा सा अच्छा चल पड़ा। ओके,
ये स्टॉप हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि ये स्टॉप क्यों हो गया। हम्म, हेलो बच्चों, मैं दिख रहा हूँ। हाँ, मुझे बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये चल ही नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट। तो चलिए, जो भी है करते हैं। तो टाइप ऑफ सिस्टम, मास फ्लो, अगर देखेंगे तो हाउ द थिंग्स आर इंटरेक्टिंग, तो मैं डिस्कस कर रहा था सिस्टम बाउंड्री की, एंड अबाउट द क्लोज सिस्टम, अबाउट द ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में आप देखेंगे ऑल थ्री, मास फ्लो नहीं होगा, वर्क भी नहीं होगा और हीट भी नहीं जनरेट होगी। एंड क्लोज सिस्टम की बात करोगे तो केवल वर्क होगा एंड हीट होगी, बट मास फ्लो इज नॉट पॉसिबल। अगर ओपन सिस्टम में देखोगे तो ऑल थ्री इज पॉसिबल। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट अबाउट लाइफ, लाइफ इज ए ओपन सिस्टम, अरे क्लोज सिस्टम। तुम ये मत कहना कि लाइफ इज ए पाई, कोई मूवी का नाम नहीं है, ये आपके CSR के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप एंजॉय भी करो, सारी चीज़ें भी देखो और फोकस होकर स्टडी करो, लॉन्ग आवर स्टडी करो, ठीक है ना, बहुत भटको मत। हमने इसको नाम दिया है बेटर पाथ फाइंडर, ओके, बेटर बेटर देन पाथ। तो आप ब्लाइंड रस मत करो, यहाँ पे काफ़ी रिसर्च करके हम क्वेश्चन भी डाल रहे हैं और जो कंटेंट दे रहे हैं काफ़ी रिसर्च करके, तो आपको अच्छा भी लगेगा एंड इजी वे में दे रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करती है, जब तक कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो यू कैन नॉट, है ना, यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग गुड, ओके। तो अगर किसी सिस्टम की बात करोगे तो सारे सिस्टम की प्रॉपर्टी एक फिक्स वैल्यू में होती है, राइट। तो अगर जैसे ही हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो सिस्टम का स्टेट भी चेंज करता है। इन सिस्टम दैट इज इन इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन द वैल्यू प्रॉपर्टी दैट आइसोलेट्स अराउंड। अगर सराउंडिंग में आइसोलेट कर दो तो कोई भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल व्हेन द टेम्परेचर इज द सेम थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम, अगर मान लो एक तरह का टेम्परेचर है, तो हम क्या कहेंगे कि सारा सिस्टम एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लो व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम, वी कंसीडर द सिस्टम टू बी, हम सिस्टम सिस्टम को क्या मान सकते हैं, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, देन क्या मान सकते हैं, at any point of the system we consider the system to be mechanical equilibrium, है ना। तो when the chemical composition of system does not vary with the time, अगर टाइम के साथ वैरी नहीं करे तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, यानी केमिकल कंपोजिशन इक्विलिब्रियम में है। तो फेज इक्विलिब्रियम इन ए टू फेज सिस्टम इज व्हेन द मास ऑफ द ईच फेज रीचेज एन इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो यू कैन कंसीडर, ओके, राइट। So I think everything is clear. हाँ, ओके, तो आई थिंक काफ़ी सिस्टम को घुमाना पड़ता है, मेरा भी बाउंड्री चेंज हो जाता है, कभी टेबल घूम जाता है, तो दैट इज़ फॉर योर, इतना हार्ड वर्क हम करते हैं उसको तो देखना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए। एज इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे थे कि व्हेन टू फेज सिस्टम इज व्हेन द मास ऑफ ईच फेज रीचेज इन इक्विलिब्रियम। हम भी जानते हैं कि आप दिन भर थक के आते होगे, तो हाउ यू आर एग्जिस्टिंग, दैट इज मे बी ए प्रॉब्लम, है ना, एक प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी आर डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए सिस्टम कैपेबल ऑफ स्पेसिफाइंग द सिस्टम स्टेट, एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, दो तरह की थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी हो सकती है, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, दैट प्रॉपर्टी दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करेगा। प्रेशर टेम्परेचर को ऐसा ही दो प्रॉपर्टी मान सकते हैं, दैट इज इंटेंसिव। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, उसको नोट करते जाना, ठीक है ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको माइंड में बना रहेगा, राइट। तो आई होप कि यू विल कोऑपरेट, ना, आप कोऑपरेट करोगे एंड यू विल लर्न ए लॉट, ना।
ठीक है। तो हेलो। ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर बात करोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आ, हाँ, मैसेज में बताओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव तो प्रॉपर्टी बताया ना, तो प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा क्या होती है। हम बंद कर दे रहा हूँ। तो आपको लगातार ये स्ट्रीमिंग हो रही होगी, आई होप सो। अगर आप कुछ चाहते हो तो यू कैन लीव ए मैसेज, और मुझे उम्मीद है कि, है ना। तो आई होप कोई स्ट्रीम, हाय हाय ऑल। स्ट्रीमिंग परफेक्ट हो रही है, काइंडली चेक कर लो, क्योंकि स्ट्रीमिंग मैसेज नहीं आ रहा है। कोई बच्चा मैसेज करे तो पता चले कि वो कर रहे हैं। एक्सटेंसिव इंटेंसिव में बता दिया। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये आपको वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है कि अगर मास कैसे चेंज हो सकता है, मास किससे अफेक्ट हो सकता है, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, एंड नहीं समझ में आ रही होगी तो आप करना। एंड द नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम में एंथैल्पी एक एनर्जी को मेजर करने का एक तरीका है। एंड एंथैल्पी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इक्वल द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, एंड दैट इज इक्वल टू सिस्टम इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के इंटरनल एनर्जी प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर होगा, उसके इक्विवेलेंट होता है आपका एंथैल्पी। तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इक्विवेलेंट टू सिस्टम इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो मैथमेटिकली अगर कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, तो एंथैल्पी को एच से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? एच से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो यू कैन ऑल्सो सी दैट एच से डिफाइन करते हैं। एंड एंथैल्पी एच इक्वल द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ई एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम को प्लस कर देते हैं इंटरनल एनर्जी से, तो ये बन जाता है एंथैल्पी। व्हाट इज एंट्रोपी? दूसरा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम पे डिपेंड करती है। दूसरे वर्ड्स में अगर कहें, इन अदर वर्ड्स, इट इज ए थर्मोडायनामिक फंक्शन यूज टू मेजर द रैंडमनेस और डिसऑर्डर। रैंडमनेस को एक तरह से डिफाइन करता है एंट्रोपी। तो जो जिन लोगों का बेसिक काफ़ी अच्छा होगा, तो आई होप कि दे विल, है ना, दे विल डू गुड। एंड अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, दैट विल बी प्रॉब्लम। ठीक है। तो बेसिक आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर कोई है तो यू कैन लीव ए मैसेज। अगर कोई क्वेश्चन है ना, मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको लगातार। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? राइट योर नेम। तो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आपको कनेक्ट करने का, तो आपको भी अपनी एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी को संभालिए। काफ़ी ठंड का मौसम है ना, काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाँ, अपना ध्यान रखना है। तो एनट्रॉपी आपकी चेंज ना हो। एनट्रॉपी किस पे डिपेंड करती है? आपके रैंडमनेस पे। डिसऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा एनट्रॉपी होगी। अगर मान लो हम एक गैस में कन्वर्ट करते हैं किसी सॉलिड को, तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी कि सॉलिड की होगी? तो एंट्रोपी ऑफ सॉलिड विल बी हाई, लो। ठीक है ना। तो अगर हम उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा फ्री मूवमेंट के लिए पॉसिबल है, तो ज़्यादा फ्री मूवमेंट हो जाता है। राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो यू कैन लीव इन द मैसेज बॉक्स। ठीक है ना बेटा। तो आप मैसेज बॉक्स में छोड़ सकते हो कोई भी मैसेज। राइट। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। एंट्रोपी आपने समझ लिया होगा। थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल, दैट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी का क्वांटिटेटिव मेजर कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल के रूप में करते हैं।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा, तो एक फाइनल स्टेट होता है, एक इनिशियल स्टेट होता है। जब एनर्जी स्टेट्स हम चेंज करते हैं, वो पोटेंशियल भी हो सकता है, और डिफरेंट पोटेंशियल आर यूज्ड बेस्ड ऑन सिस्टम कंस्ट्रेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फार्मूला टेबलेटेड बिलो, फार्मूला को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ थर्मल पोटेंशियल अलॉन्ग विद द फार्मूला, इंटरनल एनर्जी एंड हेल फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी कहते हैं, एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, एंथैल्पी आपको बताया भी, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, यू इंटरनल एनर्जी है, पी वी प्रेशर वॉल्यूम है। गिब्स फ्री एनर्जी का सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है आपके CSIR में। तो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, जी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। तो ये ध्यान रखना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। गिब्स फ्री एनर्जी, यू इंटरनल एनर्जी हो गया, पी प्रेशर वॉल्यूम हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, यस एनट्रॉपी, ये आपको पता ही होगा, दिस इज एनट्रॉपी एंड टी इज द टेम्परेचर, यू इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, यू इंटरनल एनर्जी ये वाला है, ठीक है ना, पी वी आपको पता ही है प्रेशर है वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो देयर आर 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और कल हम डिस्कस करेंगे 0 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक प्रीव्यू देते हैं कि 0 लॉ क्या मानता है कि अगर दो बॉडी इक्विलिब्रियम में हैं, तो विद सेपरेट थर्ड बॉडी, देन द फर्स्ट बॉडी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर कोई चीज़ ने सेपरेट किया है दो बॉडी को, तो ये दोनों उसकी वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लाइफ में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट टू केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है कि सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और हम प्लांट को, अभी प्लांट्स एंड कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, हम काइनेटिक एनर्जी में खा करके उसको कन्वर्ट करते हैं, और इसकी वजह से हम दौड़ सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स का है। हमारी ज़िंदगी में जितनी हलचल, जितनी अच्छी बातें होती हैं, सब बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है। तो अपना थर्मोडायनेमिक्स सही रखिए, सही प्लांट खाइए, और बीमार कम पड़िए। बीमार पड़ेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो जैसे हमने अगर कमरे में स्विच ऑन लाइट किया, तो ये लाइट प्रोड्यूस करती है, बट वो तो लाइट कैसे, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है। तो एक बल्ब क्या है, बल्ब एक सिंपल कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल या लाइट एनर्जी, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे एंट्रोपी को ज़्यादा समझना जरूरी है। तो ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। तो कल इस पे हम कुछ और एग्जांपल देंगे, डिस्कस करेंगे इसमें क्या हो सकता है ना। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हम देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हमारे साथ बने रहो, जहाँ से जो मिलता है वो ले लो। और भी जगह से देखो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे गलत दिए जा रहे हैं, बहुत सारे बायोलॉजी मैंने देखे चैनल हैं, सारे कॉन्सेप्ट गलत दे रहे हैं, आपको गलत समझा रहे हैं। तो डोंट टेक द लाइफ रिस्क, उनको नोट करके आप याद करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप गलत मटेरियल तो नहीं कहीं पढ़ रहे हो, तो वो ज़रूर चेक कर लो। तो थैंक यू, बाय बाय। एक समरी हम दे देते हैं बिफोर, अभी जाओ मत, ये समरी सुन लो। तो थर्मोडायनामिक्स क्या कह सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स डील विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया आपको कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। एंड ये देखो, फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनामिक्स से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये कहता है। सेकेंड लॉ कहता है एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज। किसी भी सिस्टम को आइसोलेट कर दोगे तो वो
जैसे डेड है, डेड ऑर्गेनिज्म की एनट्रॉपी बढ़ेगी, वो डेड हो रहा है ना, लिविंग इज इसकी एनट्रॉपी कम होगी, डेड ऑर्गेनिज्म की एनट्रॉपी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ याद रखो, लाइफ के एग्जाम्पल से सीखो, बिकॉज लाइफ साइंस के स्टूडेंट किसी भी ब्रांच को कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी टाइम पे मैसेज करो, मेरा मैसेज व्हाट्सएप है 8556092620। तो एन्जॉय द सेशन आई होप। और कमेंट बॉक्स में लिखो, अच्छा कमेंट है या बुरा कमेंट है, डोंट माइंड। आपको जैसा भी लगा है, आप कोई टॉपिक डिमांड करना है, कोई चीज़ समझना है, तो प्लीज़ शेयर विद अस। थैंक यू, बाय बाय।